بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرح شفاعت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث نبوی، آج کی کیا اچھی بات ہے وہ آپ سنیے۔ آج کی اچھی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نیا سبق شروع ہو چکا ہے اور دیکھیے تصویر کتنی اچھی لگ رہی ہے، رنگین۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے ہمارے نئے سبق کا؟ میری کتاب میری دوست۔ اس کی پڑھائی بلند خوانی ہو چکی ہے، میں ایک دفعہ اور کر رہی ہوں تاکہ جو بچے ہیں جنہوں نے ابھی کتابیں لی ہیں وہ بھی ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں سب بچوں کو پڑھنا اور لکھنا آئے، کوئی بچہ بھی پیچھے نہ رہے، اس لیے میں دوبارہ اس کو پڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو بھی اچھی طرح اس کو پڑھنا آ جائے گا۔ آپ کی اپنی کتاب ہے، اپنی کتاب کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اب کیا لکھا ہوا ہے دھیان سے دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ ساتھ۔ مشکل الفاظ کو بھی آپ بار بار دہرائیے تاکہ وہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے سے پہلے جب آپ پڑھ رہے ہیں، جس دن پڑھ رہے ہیں، آپ اس دن تاریخ ڈال لیجئے، دن لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کوئی بھی الفاظ پڑھنے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ حامد کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اکثر جب اس کو ٹائم ملتا تھا، جب فری ہوتا تھا، وہ کتابیں لے کے بیٹھ جاتا تھا پڑھنے کے لیے جب اس کے پاس وقت ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اکثر کتابوں، دیواروں اور میزوں پر تصویریں بناتا اور انہیں گندا کر دیتا تھا۔ اب اس کو پڑھنے کا تو شوق تھا، اب جب اس کو وقت ملتا تھا وہ کتابیں کھولتا تھا، پڑھتا تھا، پھر کیا کرتا تھا کہ وہ کتابیں اپنی چیزوں کو گندا بھی کر دیتا تھا۔ یہ عادت اس کی ذرا سا اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور انہیں گندا کر دیتا تھا۔ اس کی امی جو تھی، امی اور باجی اس کو ایسا کرنے سے روکتی۔ اس کی جو امی تھی اور جو اس کی بہن تھی وہ اس کو منع کرتی تھی کہ اپنی کتابوں کو، اپنی جہاں پڑھتے ہو میز ہے اور جو دیواریں ہیں بیٹا انہیں گندا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کسی کی بات نہ مانتا، بس اس کو مزہ آتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، ہر جہاں بیٹھا ہے وہیں اس نے تصویریں بنانی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، ایک مرتبہ دادی جان نے اسے اچھی سی کہانیوں کی کتاب دی۔ ایک دن کیا ہوا، دادی جان نے اس کو کہانیوں کی کتابیں لا کر دی کہ بیٹا اب یہ آپ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا آگے دیکھیے۔ اب ایک روز جب وہ حامد رات کو سو رہا تھا نا، تو ایک روز اس نے خواب دیکھا کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کو دادی جان نے کتابیں دی تھی نا، تو وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نے بہت سی تصویریں بنا کر اسے ایک طرف رکھ دیا، یعنی جیسے اس کی عادت تھی کہ اس نے پڑھنے کے بعد تصویریں بنائیں اور ان کو ایک طرف رکھ دیا، ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور پھر دوسری کتاب کھول لی۔
फिर उसने दूसरी किताब खोल ली। अब जब उसने दूसरी किताब खोली, वो ये ख्वाब देख रहा है, ठीक है। जब उसने दूसरी किताब खोली तो हामिद को ऐसा लगा कि वहाँ उसको कुछ नज़र नहीं आया। हामिद को ऐसा लग रहा था कि उसको किताब में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। हामिद को इसमें कुछ नज़र नहीं आया, हर तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें थीं। अब क्या हुआ, क्या महसूस हुआ हामिद को ऐसा लगा कि जो किताब है ना उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ हामिद की अपनी तस्वीरें जो उसने बनाई थी खुद, और कोई लफ्ज़ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकली। ख्वाब में वो चीख पड़ा कि उसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये सोच के उसके मुंह से चीख निकली और उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुली तो वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि ये एक ख्वाब था। वो अभी भी अपनी पसंद की किताब पढ़ सकता है। जब वो एकदम उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि ये तो एक ख्वाब था, और वो खुश हुआ और उसने अपनी किताब देखी तो उसको सब कुछ नज़र आया, और उसने देखा कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ और देख सकता हूँ। इस ख्वाब के बाद हामिद ने किताब को अपना दोस्त बना लिया, जो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। क्या? इस ख्वाब के बाद हामिद ने किताब को अपना दोस्त बना लिया, जो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। अब उसे एहसास हुआ किताब पढ़ने के लिए होती है, ठीक है ना। फिर उसको ख्याल आया कि नहीं, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए और उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। सही है ना। अच्छा लगा ना आपको पढ़ के। तो इसी तरह बच्चों आपको भी अपनी किताबों को साफ रखना है, उस पर कोई लकीरें नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारी किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। आप ये पढ़ चुके थे। फिर सफ़ा नंबर 32 पे आपने अल्फाज मायने भी पढ़े और सवालात के जवाब भी लिखे, वाहिद जमा भी आपने अपनी किताब में किया और अल्फाज के उलट लिखिए, ये आपने भी होमवर्क मिला आपको, वो आपने अपनी किताब में किया, ठीक है ना। ये काम आपका सब मुकम्मल हो गया, ये सारा काम आपका मुकम्मल हो गया। अब सफ़ा 33 देखिए, सफ़ा 33 खोलेंगे आप तो 33 खोलेंगे तो उसमें आपको लिखा नज़र आएगा इंशा परदाजी। जब आपने अपनी किताब खोली तो आपको क्या लिखा नज़र आ रहा है? इंशा परदाजी। क्या सवाल है? दिए गए इशारात क्या होता है? ये जो जाल बना हुआ है ना, दिए गए इशारात की मदद से मेरी पसंदीदा किताब के बारे में 5 जुमले लिखिए। ये अल्फाज 6 दिए हुए हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं, आप मिला के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है मेरी पसंदीदा किताब। अब हर बच्चे की अलग-अलग होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बताऊंगी। आपको अपनी जो पसंदीदा किताब है उसके बारे में आप लिखेंगे, या आपको मैं घर के काम के लिए दूंगी, होमवर्क दूंगी, आपने ये काम करना है, ठीक है। क्या है मेरी पसंदीदा किताब? अब जो आपकी पसंदीदा किताब है, उर्दू है, इस्लामियात है, कहानियों की है, नज़मों की है, जो भी है आप लिखेंगे उसका नाम, कि मेरी किताब का ये नाम है और उसमें कितने मज़मून हैं और उसके मुसन्निफ़ यानी जिसने ये लिखी है किताब उसका क्या नाम है, और आपको सबसे
पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा जो आपकी किताब है। फिर आपको उसमें तस्वीर और कहानियाँ भी दी गई होंगी, तो आप उसके मुतालिक भी लिखेंगे। फिर आपको क्यों पसंद है वो भी आपने लिखना है अपनी पसंदीदा किताब के बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि मेरी पसंदीदा किताब कैसे लिखेंगे। मेरी पसंदीदा किताब का नाम चंपा है। ठीक है, मैं अपने लिए लिख रही हूँ, आप अपने लिए लिखिएगा कि आपको कौन सी किताब पसंद है। मेरी पसंदीदा किताब का नाम चंपा है, जो कि उर्दू की किताब है। आप छोटे छोटे जुमले लिखिएगा ताकि आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, मेरी पसंदीदा किताब में बहुत सारे मज़मून हैं। ठीक है ना, किताब में तो आपको पता होता है नज़म भी होती है, नात भी होती है, हम्द भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम फौजिया एहसान फारूकी है। ठीक है, ये लिखा हुआ मुसन्निफ़ का नाम। अच्छा, इस किताब का सबसे पसंदीदा हिस्सा कहानियाँ हैं और रंगीन तस्वीर की मदद से कहानियाँ बताई गई हैं। ठीक है, जो कि सबक आमोज़ हैं और मज़े की भी हैं। ठीक है ना, सबक आमोज़ हैं और मज़े की भी हैं, और साथ साथ रंगीन तस्वीर हैं जिनको देखकर अच्छा लगता है। ठीक है, ये मुझे इसलिए पसंद है कि इस किताब में बच्चों की दिलचस्पी के लिए चीज़ें मौजूद हैं। रंगीन तस्वीर भी हैं और कहानियाँ भी हैं, नज़में भी हैं, जो कि सब बच्चे शौक़ से पढ़ते हैं। ठीक है ना, और इसमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें की गई हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरह आपने छोटे छोटे जुमले लिखने हैं ताकि जो भी आपकी पसंद की किताब है और छोटे जुमले जो आप आसानी से सफाई से लिख सकें। ठीक है ना, ये काम आपका मुकम्मल हो जाएगा और हमारा सबक भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है ना, आपने सवाल जवाब भी हो गए, वाहिद जमा भी हो गया, अल्फाज मुतज़ाद भी हो गए, और मेरी पसंदीदा किताब के बारे में भी काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, आप ये काम आसानी से सफाई से कीजिएगा। ठीक है ना, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।